بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج جو چیپٹر سٹارٹ کرنے لگے ہیں وہ ہے نیشنل انکم، قومی آمدنی کے حوالے سے کہ قومی آمدنی کیا ہے۔ بیٹا قومی آمدنی کو بتانے سے پہلے یہ چیز ذہن میں رکھیے گا کہ جو پارٹ سیکنڈ کی اکنامکس ہے یہ بیسیکلی میکرو اکنامکس ہے، یعنی کلی معاشیات کہتے ہیں، اور جو پارٹ فرسٹ کے ہم نے اکنامکس کو ایکسپلین کیا تھا یا اس کو جو ہم نے پڑھا ہے وہ ہے مائکرو اکنامکس، یعنی جزوی معاشیات ہم جسے کہتے ہیں۔ تو جزوی اور کلی معاشیات، پارٹ فرسٹ کی اکنامکس جزوی معاشیات اور پارٹ سیکنڈ کی جو اکنامکس ہے وہ کلی معاشیات۔ تو کلی معاشیات کے اندر بیسیکلی ایگریگیشن کی بات ہوتی ہے، مجموعی طور پر ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ مجموعی طور پر چیزوں کو ایکسپلین کرتے ہیں۔ مائکرو اکنامکس میں یعنی جزوی معاشیات میں ہم نے کنزیومر بیہیویئر کو ڈسکس کیا تھا، ڈیمانڈ سپلائی کو ڈسکس کیا تھا، اور ڈفرینٹ یعنی کنزیومر اپروچز کو، پروڈیوسر اپروچز کو اس کے اندر ایکسپلین کیا تھا۔ لیکن کلی معاشیات کے اندر ہم جو بیسکلی ایکسپلین کرتے ہیں ایگریگیٹ کی بات کرتے ہیں۔ اگر ہم نے مائکرو میں سپلائی ایکسپلین کیا تھا تو ہم ادھر ایگریگیٹ سپلائی ایکسپلین کریں گے، ادھر ہم نے ڈیمانڈ کو ایکسپلین کیا تھا تو یہاں ہم ایگریگیٹ ڈیمانڈ کو ایکسپلین کریں گے۔ اس کے علاوہ نیشنل انکم، امپلائمنٹ یا اور ان امپلائمنٹ، اس کے بعد انٹرنیشنل ٹریڈ، تو ڈیفینیٹلی ڈفرینٹ جو ایگریگیشن کے حوالے سے جو بھی اس میں جو اکنامکس کو اسٹڈی کیا جاتا ہے وہ اس سیکنڈ ایئر کے اکنامکس میں آپ ایکسپلین کریں گے، یعنی جسے ہم کلی معاشیات کہتے ہیں۔ تو کلی معاشیات کے حوالے سے جو سب سے پہلا ٹاپک ہم ایکسپلین کرنے لگے ہیں جو فرسٹ چیپٹر کے اندر ہے وہ ہے نیشنل انکم، جسے ہم انگلش میں نیشنل انکم یعنی قومی آمدنی کہتے ہیں، اردو میں قومی آمدنی کہا جاتا ہے اس کو۔ اب قومی آمدنی کیا ہے؟ اشیاء و خدمات کا وہ مجموعہ جو کسی ملک میں ایک سال کے دوران پیدا ہو، اسے ہم قومی آمدنی کہتے ہیں۔ یہ تو ہم جرنلی اس کو ایکسپلین کرتے ہیں، لیکن ہم مختلف آتھرز کی، مختلف اکانومسٹ کی ڈیفینیشن کو ڈسکس کرتے ہیں۔ تو اس میں سب سے پہلے جو آ جاتے ہیں ہمارے پاس پروفیسر گارڈنر ایکلے کی ڈیفینیشن آتی ہے جو قومی آمدنی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک فرد کی آمدنی سے مراد اس کے وہ مقصوبات یعنی کمائی ہوئی آمدنی ہے یا اپنی جائیداد کی پیداواری خدمات کے عوض حاصل ہوں، لہٰذا قومی آمدنی کسی ملک کے تمام افراد کی آمدنیوں کا مجموعہ ہوتا ہے اس میں۔ اس کے بعد پروفیسر پیگو کیا لکھتے ہیں؟ قومی آمدنی کی تعریف ان الفاظ میں کرتے ہیں، اوپر انگلش میں دی، آپ ادھر نیچے اردو میں دیکھ لیجئے گا۔ قومی آمدنی قوم کی معروضی آمدنی کے اس حصے پر مشتمل ہوتا ہے جسے زر کے پیمانے سے ماپا جا سکے، اس میں بین الممالک سے حاصل کردہ آمدنی بھی شامل ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ پروفیسر پیگو نے بھی قومی آمدنی میں صرف مادی نوعیت کی اشیاء یعنی وہ چیزیں، مادی سے مراد ویزیبل گڈز آپ جس کو کہہ سکتے ہیں یا میٹیریل گڈز کہتے ہیں، یعنی وہ چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں، وزن رکھتی ہیں، جگہ گھیرتی ہیں، ان کے بارے میں وہ ایکسپلین کرتا ہے۔ اور اس میں کیا کہتا ہے کہ مادی اشیاء کی نوعیت یعنی صنعتی اشیاء، زرعی پیداوار کو شامل کیا گیا ہے، جبکہ غیر مادی نوعیت کی اشیاء جس کو ہم خدمات کہتے ہیں، سروسز کہتے ہیں یا غیر مرئی کہتے ہیں، مثلا جس طرح پروفیسر، انجینئرز، ڈاکٹر وغیرہ کی خدمات کو نظر انداز کیا گیا ہے۔ مزید برآں پروفیسر پیگو کے مطابق قومی آمدنی میں صرف دو اشیاء شامل کی جاتی ہیں جو کہ مارکیٹ میں خرید و فروخت کے لیے لائی جائیں گی، یعنی گویا جو اشیاء براہ راست استعمال کر لی جائیں گی وہ بازار میں فروخت کے لیے پیش نہ کی جا سکیں، ان کی مالیت قومی آمدنی میں شامل نہیں ہوگی۔ اس لیے پروفیسر پیگو کی اس تعریف پر اکثر ماہرین معاشیات نے اعتراض بھی کیا کہ کیونکہ انہوں نے کیوں اعتراض کیا، کس چیز کا اعتراض کیا کہ وہ مادی اشیاء کو تو شامل کر رہا ہے، یہ غیر مادی اشیاء کو شامل نہیں کر رہا ہے، یعنی وہ سروسز کو تو اگنور کر رہا ہے، لیکن جو میٹیریل گڈز ہیں، جو مادی اشیاء ہیں، ان کو وہ اپنی ڈیفینیشن میں کیا کر رہا ہے؟ انکلوڈ کر رہا ہے اس میں۔ اب اس کے بعد بیٹا جو نیکسٹ اس کے اندر ہے، اس کے اندر اس میں اپنی ڈیفینیشن میں کیا لکھا ہے؟ کسی ملک میں محنت اور سرمایہ قدرتی وسائل کے استعمال میں لا کر اشیاء و خدمات کی مقدار کا ایک خاص مجموعہ پیدا کرتے ہیں، اور یہی اس قوم کی قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کو اگر ہم مزید دیکھتے ہیں تو مزید ہم دیکھتے ہیں کہ قومی آمدنی کی ڈفرینٹ ڈیفینیشن ہے، پروفیسر فیشر نے بھی دی ہوئی ہے۔ اشیاء خدمات کی وہ مقدار جو صارفین ایک سال کے عرصے میں صرف کرتے ہیں، خواہ وہ جاری کردہ ذرائع سے حاصل ہو یا انسانی، قومی آمدنی کہلاتی ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ ہم اس کے اندر دیکھتے ہیں تو یہ ڈفرینٹ ڈیفینیشنز وغیرہ ہیں، تو آپ کو جس آتھر کی ڈیفینیشن، جس اکانومسٹ کی ڈیفینیشن کمپیریٹیولی بہتر لگتی ہے، کسی دو اکانومسٹ کی ڈیفینیشن کو آپ ڈیفینیٹلی ان کے نام کے ساتھ آپ نے ان کی ڈیفینیشن کو تیار کرنا ہے اس میں۔ اس کے بعد ہم جو نیکسٹ اس کے اندر ڈسکس کر رہے ہیں وہ ہے قومی آمدنی کے مختلف تصورات کے حوالے سے۔ اب قومی آمدنی کے مختلف تصورات میں یہ اکثر آپ نیوز وغیرہ میں بھی سنتے رہتے ہیں، اور آپ ویسے ہی آج کل کے جس طرح کے سرکمسٹانسز ہیں تو جس میں جی ڈی پی گروتھ ریٹ کا بڑا
ایکسپلین کیا جاتا ہے کہ پاکستان کی GDP گروتھ ریٹ بہت کم ہو گئی ہے. تو بیٹا جو سیکنڈری اکنامکس ہے بیسیکلی یہ پریکٹیکل اکنامکس ہے اور یہ ہمیں نیوز میں یا اس کو ہم آج کل کی اکانومی کے اندر بہت زیادہ یعنی جس کو کہتے ہیں امپورٹنس دیتے ہیں. اور اس میں جو ہم سب سے پہلے اس کے کنسیپٹ میں ڈسکس کرتے ہیں خام ملکی یا داخلی پیداوار جسے ہم گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ کہتے ہیں. GDP سے اس کو ظاہر کیا جاتا ہے یعنی اس کی ایبریویشن جو استعمال ہوتی ہے وہ GDP یعنی جی سے مراد گراس، ڈی سے مراد ڈومیسٹک اور پی سے مراد پروڈکٹ یا پروڈکشن بھی ہم کہہ سکتے ہیں یعنی گراس ڈومیسٹک پروڈکشن. اس کے بعد خام مجموعی یا قومی پیداوار جسے ہم GNP کہتے ہیں. اور یہ میجر ڈفرینس پوچھا جاتا ہے کہ GNP اور GDP میں کیا فرق ہے. یہ آگے چل کے میں آپ کو ایکسپلین کرتا ہوں کہ GNP اور GDP میں کیا فرق ہے کہ GNP کس کو ایکسپلین کرتا ہے اور GDP کیا فرق GDP کس کو ایکسپلین کرتا ہے اور دونوں میں میجر فرق کیا ہے، کس چیز کو یعنی بیسکلی یہ ڈسٹنگوش کرتا ہے، یہ ڈفر کرتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے سے. یعنی اسے ہم گراس نیشنل پروڈکٹ کہتے ہیں یعنی GNP، G اسٹینڈ فار گراس یعنی جس کو ہم خام کہتے ہیں، نیشنل N اسٹینڈ فار نیشنل اور یعنی اس کو ہم کیا کہتے ہیں قومی کہتے ہیں، پروڈکٹ یعنی پیداوار. اسے ہم کیا کہتے ہیں خام قومی پیداوار کہتے ہیں. اس کے بعد آگے ہے خالص قومی پیداوار. تو خالص قومی اس کو ہم کہتے ہیں نیٹ نیشنل پروڈکٹ. اکثر بعض کا تو ہم لفظ یوز کرتے ہیں نیٹ پروفٹ کے، یعنی اس میں نیٹ پروفٹ کی طرح یعنی نیٹ پروفٹ کا مطلب ہے کہ خالص منافع. اسی طرح اس نیٹ سے مراد یعنی خالص ہے یعنی خالص ہم یہاں قومی پیداوار کو لے رہے ہیں جس کو ہم انگلش میں کہتے ہیں NNP یعنی نیٹ نیشنل پروڈکٹ. اس کو یعنی کیا کرتا ہے ایبریویٹ کرتا ہے، اس کو ایکسپلین کرتا ہے NNP سے اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے. یہ بعض کا تو آپ سے MCQs میں پوچھا بھی جاتا ہے کہ NNP کی ایبریویشن کیا ہے. تو ڈیفینیٹلی آپ کو اس چیز کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے کہ NNP کس چیز کو ایکسپلین کر رہا ہے یعنی اس کے حوالے سے آ گیا. اس کے بعد ہے قومی آمدنی نیشنل انکم. چوتھے نمبر پہ ہے اب نیشنل انکم NI. نیشنل انکم یہ ہم کنسیپٹ بھی نیشنل انکم کے پڑھ رہے ہیں اور اس کے کنسیپٹ میں ایک نیشنل انکم خود بھی ایک کنسیپٹ کے طور پر استعمال بھی ہوتا ہے، اس میں NNP اس کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد ہے پرسنل انکم PI سے اس کو ڈینوٹ کیا جاتا ہے. PI یعنی پرسنل انکم اور شخصی آمدنی یا ذاتی آمدنی کو اس میں کہا جاتا ہے. اس کے بعد آگے ہے قابل تصرف شخصی آمدنی ڈسپوزیبل پرسنل انکم DPI یا بعض کا ہم YD سے بھی اس کو ایکسپلین کر دیتے ہیں. تو یہ ہے یعنی کیا ہے اس کے بیسک کنسیپٹ ہیں جو اکثر آپ سے شارٹ کویسچن میں اس کے نام کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ قومی آمدنی کے مختلف تصورات کے نام ایکسپلین کریں. اب ہم ون بائی یہ کویسچن جو بیسکلی لانگ کویسچن کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے اور شارٹ ڈیفینیشن کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن کوشش کریں آپ نے یہ کویسچن جو ہے ہم یہ لانگ کویسچن کے حوالے سے زیادہ پوچھا جاتا ہے. اس میں جو سب سے پہلا ہمارے پاس کنسیپٹ ہے خام ملکی یا داخلی پیداوار جسے ہم گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ یا GDP کے اس سے ہم ڈینوٹ کرتے ہیں اس کے اندر. اب خام قومی پیداوار اور خام ملکی پیداوار، پہلے میں خام قومی کو بعد میں ایکسپلین کرتا ہوں. سب سے پہلے خام ملکی پیداوار یا داخلی پیداوار جیسے کہ نام سے ظاہر ہے اس کے اندر داخلی کہا گیا لفظ اور گراس ڈومیسٹک کہتے ہیں مقامی کو، گھریلو کو کہا جاتا ہے کہ جو مقامی طور پر چیزوں کو پیدا کیا جاتا ہے یعنی وہ چیزیں جو ایک سال کے اندر اس ملک کے اندر اس کی باؤنڈری کے اندر جو چیزیں پیدا کی جائیں گی، چاہے وہ اشیاء ہوں چاہے وہ خدمات ہوں، جو ملک کی حدود کے اندر جو آمدنی جو چیزیں پیدا کی جائیں گی جب ان کو ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں ڈیورنگ 1 ایئر ایک سال کے عرصے دوران میں سے ہم کیا کہتے ہیں خام ملکی یا خام داخلی پیداوار بھی کہتے ہیں اس کو. اب اس میں جو بیسیکلی ہے اس کے اندر جو فارن ریسورسز ہے اس میں جو بیرونی ذرائع سے جو حاصل کردہ آمدنی ہوتی ہے وہ اس کے اندر شامل نہیں ہوتی، یعنی وہ بیرونی ذرائع سے جو آمدنی ہم حاصل کرتے ہیں وہ اس میں شامل نہیں ہوتی. یعنی بہت سارے پاکستانی ایسے اگر پاکستان کے ریفرنس یا پاکستان کے کانٹیکس کے حوالے سے بات کریں تو بہت سارے پاکستانی ایسے جو پاکستان سے باہر ہیں، اب وہ اپنی یعنی وہاں باہر روزگار کے سلسلے میں باہر اپنا یعنی روزگار حاصل کر رہے ہیں، لیکن وہ اپنی انکم کو وہاں سے یعنی کیا کرتے ہیں ارن کر کے پاکستان کے اندر بھیجتے ہیں. اور وہ GNP تو ہم GNP میں تو شامل کرتے ہیں لیکن GDP کے اندر وہ چیز شامل نہیں ہوتی. اس سے GDP کے اندر کیا ہوتا ہے کہ بیسیکلی جو ایکسپلین کرتا ہے وہ GDP جو ہمیں ہوتا ہے کہ اس میں ہم جو فارن ریسورسز ہوتے ہیں اس کو ہم کیا کرتے ہیں اس کے اندر ایکسپلین نہیں کرتے. اب اسی کے اندر بیسیکلی ہم اگر اس کو ایک مساوات کی صورت میں ایکسپلین کریں تو مساوات کی صورت میں ہم اس کو ایکسپلین کرتے ہیں. تو اس مساوات کی صورت میں ہم اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں اس کی ایکویشن ہے ہمارے پاس کہ GDP is equal to C plus I plus G plus X minus M. اب اس میں ایک چیز ہم نے کیا کرنی ہے انکلوڈ کرنی ہے اس کے اندر جو اس میں تھوڑی سی مس نظر آ رہی ہے مجھے. اس کے اندر آپ نے مائنس FI یعنی M کے آگے آپ نے مائنس FI کر دینا ہے. FI کا مطلب فارن انویسٹمنٹ جو کہ ہم GDP کے اندر انکلوڈ نہیں کرتے. یعنی اگر ہم GNP میں سے
फॉरेन इनकम को डिडक्ट कर दें, उसको हम इससे मिन्हा कर दें, उससे निकाल दें, तो हमारे पास जीडीपी हासिल होती है। अब इसमें सी स्टैंड फॉर कंजम्पशन, खर्च को एक्सप्लेन करता है, आई स्टैंड फॉर इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी को एक्सप्लेन कर रहा है, जी स्टैंड फॉर गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट के एक्सपेंसेस को एक्सप्लेन कर रहा है, और एक्स स्टैंड फॉर एक्सपोर्ट, यानी वो एक्सपोर्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, और एम से मुराद इम्पोर्ट्स, और वो इम्पोर्ट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं। अब बेटा इसमें एक चीज़ ध्यान में रखनी है आपने, इसके अंदर आप देखिए कि सी प्लस आई प्लस सी प्लस एक्स, यहाँ तक आपको पॉजिटिव साइन नज़र आ रहे हैं कि जो यानी जीएनपी जीडीपी के अंदर शामिल हो रहे हैं। अब एक प्लस एक्स के आगे एक्स माइनस एम, एक्स माइनस एम बेसिकली नेट एक्सपोर्ट को एक्सप्लेन कर रहा है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब ये होता है कि हम अपनी एक्सपोर्ट में से इम्पोर्ट्स को क्या करते हैं, माइनस करते हैं। और ये बाज़ का नेट एक्सपोर्ट्स क्या होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है। अब वो किस तरह हो सकती है, फर्ज के बाज़ का ये होता है कि हम 100 मिलियंस की एक्सपोर्ट्स करते हैं, लेकिन 80 मिलियन के हमारी इंपोर्ट्स हैं। इसका मतलब है हमें 20 मिलियंस का बेनिफिट हो रहा है कि हमारे एक्सपोर्ट्स ज़्यादा हैं, किससे, इंपोर्ट्स से। और बाज़ का इसके पैरेलल इसके अपोजिट सिचुएशन भी पैदा हो जाती है कि बाज़ का हमारी इंपोर्ट्स, जो अक्सर ऐसा ही होता है कि हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं, एक्सपोर्ट्स कम होती है। एक फ़र्ज़ क्या, हमारी इंपोर्ट्स हैं, वो जो हमारी इंपोर्ट्स हैं बेसिकली वो है 100 मिलियंस की, और हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो हैं 80 मिलियंस की। तो डेफिनेटली फिर इसके अंदर जो साइन है, जो हमारे पास रिजल्ट है कि -20 आ जाएगा। -20 का मतलब है कि हमारी एक्सपोर्ट्स कम है एज़ कम्पेयर टू हमारी इंपोर्ट्स के, और माइनस का साइन इंडिकेट कर रहा है कि हम जो है इसमें हम लॉस गेन कर रहे हैं, कि हमारी इंपोर्ट्स ज़्यादा हैं और एक्सपोर्ट्स कम है, यानी हमारा पैसा दूसरे मुल्कों में ज़्यादा जा रहा है और दूसरे मुल्क से पाकिस्तान के अंदर पैसा कम आ रहा है। तो ये था सबसे पहले हमारे पास जीडीपी, जिसको हम कहते हैं खाम मुल्की या कौमी, खाम मुल्की या दाखिली पैदावार कहते हैं। उसके बाद हमारे पास खाम या मजमूई कौमी पैदा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जीएनपी से इसको डिनोट किया जाता है। अब इसमें क्या फ़र्क है, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है, इसको हम क्या कहते हैं कि अशिया खिदमत। अब देखिए इसमें डेफिनेशन क्या है, जीएनपी और जीडीपी दोनों की डेफिनेशन यहाँ आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जीएनपी के अंदर हमने ये क्या जीडीपी में पढ़ा है कि अशिया खिदमत का वो मजमुआ जो किसी मुल्क में एक साल के दौरान पैदा हो, नीज इसमें बैरून मुल्क रहने वालों की आमदनी शामिल ना हो, उसे हम खाम मुल्की या दाखिली पैदावार कहते हैं। आप खाम कौमी पैदावार या मजमूई पैदावार, इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि इसमें अशिया खिदमत का वो मजमुआ जो किसी मुल्क में एक साल के दौरान पैदा हो, नीज इसमें बैरून मुल्क रहने वालों की आमदनी भी शामिल हो। जीडीपी में क्या था, शामिल ना हो, इसमें क्या है, शामिल हो। तो मेजर डिफरेंस क्या है इस जीएनपी और जीडीपी में, यही है जो फॉरेन रिसोर्सेज से इनकम जो जनरेट की जाती है, जो हासिल की जाती है, जो इनकम हासिल की जाती है, वो जीएनपी में तो शामिल होगी लेकिन उसको जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता। तो इसलिए यानी जो बैरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदनी होती है वो जीडीपी में शामिल नहीं होगी, लेकिन जीएनपी के अंदर उसको शामिल किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या है। अब इसमें क्योंकि हम अशिया खिदमत की बात करें तो अशिया खिदमत के हवाले से डेफिनेटली इसके अंदर हमें ये चीज़ बार बार एक्सप्लेन हो रही है इसमें। उसके बाद आगे हमारे पास है, अब इसी को हम अगर इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं तो डेफिनेटली हमारे पास क्या आ जाता है, इसके पैरेलल रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है इसके अंदर है खालिस कौमी पैदावार, एनएनपी इसको कहा जाता है। अब एनएनपी क्या है इसके अंदर, एनएनपी से मुराद ये होता है कि नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर हम सिंपल सिर्फ सबसे पहले इसकी इक्वेशन पे चले जाए, इक्वेशन पे चले जाते तो इक्वेशन पे हमें नजर आ रहा है एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी प्लस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस। ये मैं माउस के जरिए इसको अंडरलाइन कर रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ देखें कि एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डीए से इसको ज़ाहिर किया जाता है, यानी डीए स्टैंड किसको एक्सप्लेन करें, डेप्रिसिएशन अलाउंसेस को, जिसको हम फरसूदगी का खराजात, तोड़ फोड़ के खराजात, शिकस्त और रेट कहा जाता है। अब इसको हमने डिफाइन कैसे करना है, अब रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप लॉजिकली इसको आपने जहन में रखना है कि जीएनपी क्या है। अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको यहाँ आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आपने इक्वेशन को देख के इसकी डेफिनेशन करनी है। जीएनपी क्या है, खाम कौमी पैदावार, कि अगर खाम कौमी पैदावार में से डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, फरसूदगी के अखराजात, तोड़ फोड़ के अखराजात भी आप इसको कहते हैं। अब डेफिनेशन क्या होगी कि अगर जीएनपी में से तोड़ फोड़ के अखराजात मिन्हा कर दिए जाए, मनफी कर दिए जाए, निकाल दिए जाए तो खालिस कौमी पैदावार हासिल होती है, इसे हम खालिस कौमी पैदावार कहते हैं। तो ये इसकी डेफिनेशन है। और डेफिनेशन कहाँ से हमने एक्सप्लेन किया है, इसकी इक्वेशन से। दोबारा सुने कि एनएनपी इज इक्वल टू जीएनपी माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंसेस, और यानी डीए से इसको जाहिर किया जाता है। डीएस यानी क्या है, खाम कौमी पैदावार में से अगर तोड़ फोड़ के अखराजात निकाल दिया जाए, माइनस का साइन बता रहा है कि निकालने को,
माइनस करने को, मनफी करने को एक्सप्लेन करें कि खाम कौमी पैदावार में से अगर तोड़ फोड़ के अखराजात निकाल दिए जाए तो इसे हम खालिस कौमी पैदावार कहते हैं। यानी खालिस पैदावार जो बेसिकली है, यानी इसके अंदर जो तमाम किस्म के एक्सपेंसेस होते हैं जो ड्यूरिंग 1 ईयर होते हैं, फ़र्ज़ किया वो जो ड्यूरिंग 1 ईयर इसके ऊपर इस्तेमाल हुए हैं। अब मैं फॉर एग्जांपल आपको यहाँ एक्सप्लेन कर देता हूँ। फ़र्ज़ किया कि एक गन्ने की फसल है, एक काश्तकार को उस गन्ने की फसल में से 12 लाख का प्रॉफिट हुआ है। अब उस 12 लाख का प्रॉफिट तो हुआ, ये इसका ग्रॉस प्रॉफिट हम इसको कहते हैं, खाम मुनाफा कहते हैं हम इसको, ये ग्रॉस प्रॉफिट है। अब उसमें से अगर हमने नेट प्रॉफिट निकालना है तो नेट प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे इसके अंदर कि उस 12 लाख उसने गेन तो किया, उसने प्रॉफिट तो गेन किया है, लेकिन उस प्रॉफिट के अंदर वो यानी टोटल उसको इनकम हुई है, उस प्रॉफिट में से फ़र्ज़ किया कि उसके अंदर उसके 5 या 6 लाख उसके कंजम्पशन भी है, उसने इसमें खेत को पानी भी दिया है, खाद भी डाला है, स्प्रे भी किया है, उसके अंदर ट्रैक्टर भी इस्तेमाल हुआ है, ठीक है, उसके अंदर फ्यूल भी इस्तेमाल हुआ है, ट्रैक्टर ख़राब भी हुआ है, ठीक है, जो उसकी जो वेयर एंड टेयर है वो भी इसके अंदर इंक्लूड किया जाए। तो फॉर हम एक्सप्लेन कर यहाँ सपोज कर लेते हैं कि 6 लाख है, 6 लाख है। अब हम 12 में से 6 माइनस करें तो 6 जो बाकी बचेगा वो क्या कहलाएगा, उसका नेट नेशनल प्रोडक्ट कहते हैं, हम इसको खालिस कौमी पैदावार कहते हैं। तो ये यानी क्या है, इसी तरह यानी यहाँ उसने आपको एग्जांपल में यहाँ एक लिखी हुई नज़र आ रही है आपको एग्जांपल कि मिसाल के तौर पर एक मशीन 1 लाख रुपए की आती है अगर, और वो 10 साल तक काम करती है, इसके बाद वो बेकार हो जाती है, इसलिए उसकी कदर व कीमत हर साल 10,000 रुपये की कमी वाक़ई होगी, जिससे उसकी कौमी आमदनी भी कम होगी। लिहाजा खालिस पैदावार हासिल करने के लिए शिकस्त और जो या फरसुदगी के अखराजात या तोड़ फोड़ के अखराजात खाम कौमी पैदावार में से मनफी करने पड़ेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, खालिस कौमी पैदावार कहते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास है वो है कौमी आमदनी, नेशनल इनकम। जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में भी बताया है कि नेशनल इनकम क्या है, बेसिकली नेशनल इनकम क्या है कि कौमी आमदनी। अब कौमी आमदनी शुरू में सिंपल मैंने कहा है कि अगर आपको ये बुक पे लिखी हुई डेफिनेशन मुश्किल लग रही है तो मैं जो ये बता रहा हूँ इसको नोट कर लीजिएगा। इसके सिंपल डेफिनेशन क्या है, अशिया खिदमात का वो मजमुआ जो किसी मुल्क में 1 साल के दौरान पैदा हो कौमी आमदनी कहलाती है। दोबारा सुन लें, अशिया खिदमात का वो मजमुआ जो किसी मुल्क में 1 साल के दौरान पैदा हो उसे हम कौमी आमदनी कहते हैं। एक तो डेफिनेशन ये होगी जनरल, यहाँ बुक पे भी कुछ डेफिनेशन मेंशन की हुई है, बुक से भी देख लें इसको कि कौमी आमदनी से मुराद वो आमदनी है जो किसी मुल्क के तमाम आमदनी पैदाइश के मुआवजों का मजमुआ हो, यानी लगान, उजरत, सूद और मुनाफे के मजमुए को ही कौमी आमदनी कहा जाता है। बाद अशिया की खिदमत, अशिया खिदमात की कीमतें कौमी आमदनी की हकीकत को आश्कार नहीं करती, यानी वो उसकी हकीकत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। इसको हम इसकी वजूहात भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि क्यों ऐसे नहीं होते। बाज़ का अशिया के ऊपर हुकूमत टैक्स आयद कर देती है, मसलन एक्साइज ड्यूटी वगैरह, कारखानादार ही इन टैक्सों को अदा करते हैं और कीमत में यही टैक्स जमा करके सार्फिन से वसूल भी करते हैं। अब यहाँ एग्जांपल लिखी हुई है, एक मिसाल के तौर पर एक पंखे की कीमत 800 रुपये है, लेकिन फिर पंखा 100 रुपये हुकूमत टैक्स लगा देती है। आज सार्फिन को यही पंखा 900 रुपये का इवज़ खरीदना पड़ेगा, जबकि इसकी असल कीमत 800 रुपये थी। लिहाजा असल में कीमतों का सही अंदाज़ा लगाने के लिए इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम बिलवास्ता टैक्स को इनडायरेक्ट टैक्सेस की मालियत को मनफी भी करना पड़ता है या उसको मनफी कर देना चाहिए होता है। ठीक है जी, तो ये है, ये हमारे पास। अगर हम इसको नीचे इसको भी अगर हम एक्सप्लेन करें इसकी इक्वेशन के साथ, इसकी इक्वेशन है, इसकी इक्वेशन यहाँ उर्दू में लिखी है, इंग्लिश में भी लिखी है कि नेशनल इनकम को एक्सप्लेन किया जाता है इज इक्वल टू NNP। जो इससे ऊपर वाला पॉइंट पड़ा है वो नेट नेशनल प्रोडक्ट है कि अगर हम नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी में से इनडायरेक्ट टैक्सेस, जिसको हम क्या कहते हैं, बिलवास्ता टैक्स कहते हैं, उसमें से नेट नेशनल प्रोडक्ट्स में से इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर दे, मनफी कर दे, लेकिन उसके बाद प्लस एस, यानी एस जिसको हम कहते हैं सब्सिडी, सब्सिडीज जिसको उर्दू में कहा जाता है एयाने। एयाने का मतलब होता है, एयाने से निकला है मदद करना, या इसको रियायत की सेंस में भी यूज़ करते हैं कि बाज़ का हुकूमत सब्सिडीज़ वगैरह अनाउंस कर देती है। सब्सिडी से मुराद यहाँ ये हो रहा है कि बाज़ का किसी एक्सपोर्टर ने या इम्पोर्टर ने बाहर से कोई चीज़ इम्पोर्ट की है और उस चीज़ के मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो हुकूमत आगे जो इंपोर्टर या एक्सपोर्टर को क्या करती है, फैसिलिटी देती है कि उसको टैक्स फ्री कर देती है। यानी अगर उसने 80 लाख रुपीज़ की चीज़ मंगवाई है और उसके ऊपर 10 लाख टैक्स बनता था, हुकूमत वो टैक्स माफ़ कर दे, तो हम इकनॉमिक्स के टर्म में इसको सब्सिडी कहते हैं, इसको यानी एयाने कहते हैं। तो एयाने यानी इसमें से माइनस कर दिए जाते हैं। तो ये आगे हमारे पास नेट नेशनल, ये आ गया हमारे पास नेशनल इनकम यानी कौमी आमदनी आ गया। और उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास जो कंसेप्ट आ रहा है इसके अंदर वो है पर्सनल इनकम, जिसे हम ज़ाती शख्सियत ज़ाती आमदनी कहते हैं। अगर हम सिंपल इसको डिफाइन करें तो सिंपल अगर मैं इसको बताऊं तो इसके अंदर बेसिकली ये है, यानी जो शख्सी या ज़ाती आमदनी बेसिकली क्या है, किसी शख्स की वो आमदनी जो वो साल भर में कमाता है,
सिंपली मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, अगर आपको ये इजी लग रही है तो इसको नोट कर लीजिएगा। शख्सी आमदनी से मुराद वो आमदनी है जो एक शख्स साल भर में कमाता है, उसे शख्सी आमदनी या ज़ाती आमदनी कहते हैं। इसके अलावा बुक पे भी इसकी डेफिनेशन लिखी है, अगर बुक से इजी लगती है तो बुक से कर लें। शख्सी या ज़ाती आमदनी से मुराद वो आमदनी है जो किसी मुल्क के बाशिंदों को हासिल होती है, और शख्सी आमदनी कौमी आमदनी से अखज़ भी की जाती है। अब इसके अंदर शख्सी आमदनी के अंदर कौन कौन सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं, इसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल होती हैं। अगर हम इसको इक्वेशन की मदद से नीचे जाके एक्सप्लेन करते हैं तो इक्वेशन की मदद से इसको एक्सप्लेन करना और ज़्यादा इजी हो जाता है, यानी पर्सनल इनकम इज इक्वल टू, अब इससे ऊपर वाला पॉइंट हमने नेशनल इनकम पढ़ा था, कौमी आमदनी NI माइनस यानी इसको हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉर्पोरेट प्रॉफिट या अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कहते हैं। उसके बाद प्रॉफिट टैक्स माइनस करना है, सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन वो भी माइनस करनी है, और प्लस ट्रांसफ़र पेमेंट जिसको हम इंतकाल अदायगियाँ कहते हैं वो इसके अंदर शामिल करना है। अब यानी क्या है इसके अंदर बेसिकली कि अगर हम कौमी आमदनी में से वो प्रॉफिट जो भी तकसीम नहीं हुआ, वैसे वो प्रॉफिट जो तकसीम नहीं हुआ वो इसमें शामिल नहीं होगा, यानी वो इसमें से माइनस होगा। मान फर्ज क्या, एक कंपनी के 10 शेयर होल्डर्स हैं, 10 हिस्सेदार हैं, लेकिन 10 शेयर होल्डर में से एक शख्स उस कंपनी को रन करता है। अगर वो शख्स साल के बाद या मंथ के बाद उनका जो भी प्रोसीजर है, जो भी सिस्टम बनाया हुआ है, अगर हम क्योंकि हम बेसिकली एनुअली सिस्टम डिस्कस है, एनुअली सिस्टम के बाद वो अगर ये कहते हैं कि साल के बाद जनाब इस फैक्ट्री को 10 लाख का प्रॉफिट हुआ है, जो इस फैक्ट्री को रन कर रहा है, और वो ये कहे कि ये 10 लाख मेरा है, तो ये गलत है। बेसिकली 10 लाख उन लोगों का है जो उसके 10 पार्टनर हैं, यानी हर पार्टनर के हिस्से में 1-1 लाख रुपए प्रॉफिट आएगा। अगर वो तकसीम हो जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा, यानी कि वो प्रॉफिट हम 10 लाख जो है उसको हम तकसीम नहीं कर रहे, तो फिर हम उसको क्या करते हैं, माइनस करेंगे, उसको हम पर्सनल इनकम के अंदर शामिल नहीं करेंगे। उसके बाद इसके अंदर जो बेसिकली नेक्स्ट वो बता रहा है कि ये गैर शिदा ये थे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट थे। उसके बाद है मुनाफा टैक्स। बात का हुकूमत क्या करती है, आज ये सरमायाकारी करने वाले इदारों पर मुनाफे के ऊपर टैक्स भी लगा देती है, और टैक्स की मालियत उस शख्स की आमदनी में शामिल नहीं होती, कि बाद को किसी शख्स की आमदनी ज़्यादा होती है, किसी शख्स की आमदनी कम हो जाती है, तो आमदनी के लिहाज से ये टैक्स ज़्यादा या कम नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता। तो वो प्रॉफिट के लिहाज से जो भी होगा, प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो डेफिनेट टैक्स की रेशो भी ज़्यादा होगी, अगर प्रॉफिट कम होगा तो डेफिनेटली टैक्स की रेशो भी क्या हो जाएगी, इसमें कम हो जाएगी, यानी वो इसके अंदर शामिल नहीं करना। उसके बाद है समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कटौतियाँ। इसके बाद समाजी तहफ़्फ़ुज़ की कटौतियाँ जो हैं ये भी इसके अंदर शामिल नहीं होती। और समाजी तहफ़्फ़ुज़ क्या होता है, ये गवर्नमेंट ये सोशल सेक्टर्स के जो इदारे होते हैं, जैसे ओल्ड एज हाउस होते हैं, आउट ऑफ कंट्रीज़ बने जाते हैं, जैसे हमारे पाकिस्तान के अंदर भी यतीम खाने बनाए गए हैं, या जिसको आप ओल्ड शेल्टर होम भी कहते हैं, या आप उसको डिफरेंट नाम दे सकते हैं, यतीम खाने बनाए गए हैं जहाँ मस्कीन, जहाँ गरीब और जो लोग, जिससे अभी करंट गवर्नमेंट ने यानी पनाहगाहें बनाई हैं जहाँ लोग रात को जाकर स्टे करते हैं, ये वो उनके ऊपर जो पैसे वगैरह खर्च होता है, हुकूमत उनके खाने पीने के लिए, रिहाइश के लिए सिस्टम बनाती है, वो भी क्या होगा, वो भी इसके अंदर शामिल नहीं करनी। अब क्यों शामिल नहीं करनी होती, क्योंकि हम इसकी एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं, तो जिस चीज़ का अमाउंट का पता नहीं होगा हम उसको इसके अंदर शामिल नहीं करेंगे। तो इसलिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ की जो कटौतियाँ जिसे हम सोशल सिक्योरिटी डिडक्शन कहते हैं वो भी इसके अंदर शामिल नहीं होगी। लेकिन जो लास्ट है ट्रांसफ़र पेमेंट्स, TP से ज़ाहिर किया जाता है इसको, इंतकाल अदायगियाँ, ये अदायगियाँ वो होती हैं जो किसी शख्स को बगैर मेहनत के हासिल होती हैं। सिंपली दोबारा सुन लें, इंतकाल अदायगी से मुराद वो ऐसी अदायगी है या वो अदायगी है जो किसी शख्स को बगैर मेहनत के हासिल होती है। और वो कौन सी अदायगी होती है जो किसी शख्स को बगैर मेहनत के हासिल होती है, पेंशन, वज़ाइफ, तहाइफ, जेब खर्च, ठीक है जी, तो पेंशन, भीख वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं ये क्या आ जाती हैं हमारे पास, ये इंतकाल अदायगी के अंदर शामिल होती हैं। अब इसको हम नीचे फिर दोबारा इसकी इक्वेशन है, तो बेसिकली इक्वेशन ही इस क्वेश्चन का बेसिक ज़्यादा अहम पहलू जो है इसके अंदर बेसिकली वो ज़्यादा है। उसके बाद आगे जो है इसके अंदर काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी DPI जो लास्ट है, इसके अंदर DPI काबिल तसर्रुफ डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम भी कहा जाता है। तो हमें पता है कि जो आमदनी को वाई से ज़ाहिर किया जाता है, ठीक है जी, तो उसकी जगह हम वैसे इसको ज़ाहिर किया जाता है DPI। तो DPI जो है डिस्पोजेबल पर्सनल को कहा जाता है, उसकी जगह हम YD भी यूज़ करते हैं, YD इसको हम कह सकते हैं, DPI की जगह हम इसको YD भी कहते हैं, डिस्पोजेबल इनकम को कहा जाता है। अब ये क्या इनकम होती है, अब इसकी सिंपल ज़रा नीचे ज़रा इक्वेशन पे देखिएगा, ये मैं माउस के ज़रिए इसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि DPI इज इक्वल टू PI माइनस DT। DT स्टैंड फॉर डायरेक्ट टैक्सेस, यानी जिसको हम बरह रास्त टैक्स कहते हैं या बिला वास्ता टैक्स कहते हैं। इसकी डेफिनेशन क्या होगी, इसकी डेफिनेशन भी इसकी इक्वेशन से ही बनेगी। PI किसको एक्सप्लेन कर रहा है, शख्सी आमदनी को,
अब डेफिनेशन, ये माइनस का साइन है और ये डायरेक्ट टैक्सेस है जिसको हम बराह रास्त टैक्स कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि अगर शख्सी आमदनी यानी पीआई, अगर शख्सी आमदनी में से डायरेक्ट टैक्सेस यानी बराह रास्त टैक्स निकाल दिए जाएं, मिन्हा कर दिए जाएं, तो हमें काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी हासिल होती है। एक तो सिंपल डेफिनेशन इसकी ये होगी, अगर ये इजी लगे तो इसको नोट कर लीजिएगा। एक बुक पे भी मेंशन की हुई है, शख्सी आमदनी का वो हिस्सा जो लोग अपनी मर्जी या ख्वाहिश के मुताबिक खर्च कर सकें, काबिल तसर्रुफ शख्सी आमदनी कहलाता है। तो इसकी भी आपने डेफिनेशन और इसकी इक्वेशन को क्या करना है, एक्सप्लेन कर देना है। और इसमें इसके अलावा जो मॉडर्न इकोनॉमिक्स के अंदर 7वां पॉइंट आ जाता है, वो आ जाता है फीकस आमदनी। फीकस आमदनी, और फीकस आमदनी को मैं सिंपली एक्सप्लेन कर देता हूँ। फीकस आमदनी बराबर है कुल आमदनी या कौमी आमदनी तकसीम कुल आबादी। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि कुल आबादी को कुल कौमी आमदनी पे तकसीम कर दिया जाए तो इससे हम फीकस आमदनी कहते हैं। दोबारा इसकी इक्वेशन क्या है, फीकस आमदनी बराबर है कुल आमदनी या कौमी आमदनी भी कर सकते हैं, कौमी आमदनी तकसीम कुल आबादी। अब डेफिनेशन क्या होगी इसकी कि कुल आमदनी को कुल आबादी पे तकसीम करने से फीकस आमदनी हासिल होती है। ये इसका 7वां कंसेप्ट भी इसको कहा जाता है। यहाँ बुक पे बेसिकली 6 एक्सप्लेन किए हुए हैं, लेकिन 7वां जो है आपकी बुक के अंदर मौजूद होगा। जो नए एडिशन की बुक है उसके ऊपर जो 7th नंबर पे है वो है फीकस आमदनी। तो फीकस आमदनी यानी हर शख्स की आमदनी पर कैपिटा इनकम, इसको एक्सप्लेन किया जाता है। इसको पर कैपिटा इनकम PCI से भी इसको कहा जाता है। तो यानी क्या होती है कि कुल आमदनी को कुल आबादी पे तकसीम करके हासिल की जाती है। तो आज के लेक्चर के हवाले से ये था, हमारा टॉपिक था ये कौमी आमदनी और इसके तस्वुरात के हवाले से। डियर स्टूडेंट्स, आपको इस लेक्चर के हवाले से किसी किस्म के क्वेश्चन करने हो तो आपने वॉइस मैसेजेस के थ्रू मेरे पर्सनल मेरा पर्सनल जो व्हाट्सएप नंबर है उसमें वॉइस मैसेज करके आपने मुझसे क्वेश्चन करना है। मैसेज करके आपने किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं करना। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन हो तो वॉइस मैसेज में मुझे करें, मैं आपको रिप्लाई भी वॉइस मैसेज में ही करूँगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।